السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ملک بھر میں انڈیگو ایئر لائنز کی کارکردگی ٹھپ، 1200 سے زائد پروازیں منسوخ، مسافرین کی برہمی، ایئرپورٹس پر افراتفری۔ ڈی جے سی اے نے ایئر لائن انتظامیہ کو کیا طلب۔ ایودھیا کا تنازع اراضی کا تھا، نام کا نہیں۔ ملک میں رام کے کئی منادر ہیں، خانگی اراضی پر کسی نام سے بھی مسجد کی تعمیر کا حق ہے۔ مجلس کی رکن اسمبلی اختر الایمان کا رد عمل۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کام اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہیں مصروف۔ تلنگانہ حکومت کی لینڈ ٹرانسفارمیشن پالیسی کے خلاف بی آر ایس ارکان کا صنعتی علاقوں کا دورہ۔ بانی کل ہند مجلس تعمیر ملت اور اقبال اکیڈمی سید خلیل اللہ حسینی مرحوم کے فرزند سید ایوب حسینی بلا مقابلہ تعمیر ملت کے صدر منتخب، اراکین نے دی مبارکباد۔ رین بازار پولیس اسٹیشن حدود میں نوجوان کا مہلک ہتھیاروں سے قتل، علاقے میں سنسنی، ظفر پہلوان کے 2 فرزندان مبینہ طور پر ملوث۔ رنگا ریڈی ضلع کے لینڈ ریکارڈز محکمے کے ای ڈی سرینیواس کے دفتر اور مکانات پر اے سی بی کے دھاوے، آمدنی سے کہیں زیادہ اثاثوں کا ہوا انکشاف۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے جنم باٹا پروگرام کے تحت آج میڈچل ملکاجگری ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ کویتا نے عوامی مسائل کا براہ راست جائزہ لیا۔ کویتا نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور متعدد سرکاری محکموں کی لاپرواہی پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ کویتا نے واضح کیا کہ عوامی تکالیف اور بنیادی سہولیات کی کمی کسی بھی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اس ضمن میں فوری کارروائی ناگزیر ہے۔ کویتا نے رامنتا پور پہنچ کر کرشنا جنماشٹمی کے موقع پر رتھ یاترا کے دوران برقی شوق سے فوت 5 افراد کے ارکان خاندان سے بھی ملاقات کی۔ ملک میں انڈیگو کی پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے مسافرین کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 دنوں میں مختلف تکنیکی وجوہات، خراب موسم، اسٹاف سے متعلق نئے قواعد اور عملے کی کمی کے باعث انڈیگو کی 100 سے زیادہ فلائٹس متاثر ہوئی ہیں۔ بنگلور، ممبئی، دہلی، احمد آباد، اندور، حیدرآباد، سورت اور کولکتہ سمیت ملک کے 8 بڑے ایئرپورٹ سے بڑی تعداد میں پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق بنگلورو میں 42، ممبئی میں 33، دہلی میں 38، احمد آباد میں 25، اندور میں 11، حیدرآباد میں 60، سورت میں 8 اور کولکتہ میں 10 فلائٹس متاثر ہوئیں۔ دراصل مسلسل تبدیلیوں اور تاخیر کے باعث کئی مقامات پر مسافروں اور ایئر لائن عملے کے درمیان برہمی بھی دیکھی گئی۔ مسافرین کو حیدرآباد ایئرپورٹ پر ایئر لائنز کے عملے کے ساتھ بحث و تکرار کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس دوران انڈیگو ایئر لائنز کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں 1232 فلائٹس منسوخ ہوئی ہیں۔ స్వాములు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు స్వామి ఎయిర్పోర్ట్లో అయ్యప్ప స్వామి కష్టాలు, ఫ్లైట్లన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి। అయ్యప్ప స్వాములు చూసి చేసుకోండి, క్యాన్సిలేషన్ అవుతున్నాయి మొత్తం ఇండిగో ఫ్లైట్స్।
وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد مزید 40,000 جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ حکومت کے 2 سال کی تکمیل کے ضمن میں دورہ اضلاع کے تحت ریونت ریڈی نے آج کریم نگر ضلع کے حسن آباد اسمبلی حلقے کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے 262 کروڑ کی لاگت سے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ تحریک میں کریم نگر ضلع نے اہم رول ادا کیا ہے۔ سونیا گاندھی نے کریم نگر میں عوام سے علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کا وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے نئی ریاست تشکیل دی گئی۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ کانگریس کی حکومت پر لینڈ ٹرانسمیشن پالیسی کے تحت 5 لاکھ کروڑ روپے کے اسکیم کا الزام لگا چکے ہیں اور حکومت کی طرف سے اراضیات پر قبضوں کا جائزہ لینے کے لیے وہ صنعتی علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ جمعرات کو انہوں نے جیڈی میٹلا کا بھی دورہ کیا۔ پارٹی کے ارکان اسمبلی، ارکان کونسل اور عوامی نمائندے KTR کے ہمراہ تھے۔ KTR نے قطب اللہ پور میں خولیوں سے بات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی۔ بعض خولیوں نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی اقل ترین اجرت کی بات کرتے ہیں، اس میں گزر بسر کیسے ہوگی؟ بعد میں KTR نے کہا کہ لینڈ ٹرانسمیشن پالیسی کے نام پر کانگریس زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے۔ جیڈی میٹلا کے صنعتی علاقے میں فی ایکڑ 50 کروڑ روپے کی اراضی کو صرف 1 کروڑ روپے میں دینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ KTR کا کہنا تھا کہ اگر ان اراضیات پر IT پارکس تعمیر کیے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، غریبوں کے لیے مکانات تعمیر کیے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن کانگریس حکومت سرکاری اراضیات اپنے دوستوں کو کم قیمت پر فروخت کرے گی تو BRS خاموش نہیں رہے گی۔ KTR نے قطب اللہ پور میں لینڈ ٹرانسمیشن پالیسی کے خلاف دھرنا بھی دیا۔ خبردار بو مافیا ریونت ریڈی، خبردار لینڈ مافیا، خبردار لینڈ مافیا ریونت ریڈی، ڈاؤن ڈاؤن HIDP، HIDP، لینڈ مافیا ریونت ریڈی، خبردار لینڈ مافیا ریونت ریڈی، خبردار لینڈ ఇవాళ హైదరాబాద్లోని 9,300 చిల్లర ఎకరాలు పరిశ్రమల అవసరాల కోసం ఇచ్చిన స్థలాన్ని ఇవాళ ప్రభుత్వం కాలుష్యకారక పరిశ్రమలను తరలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నది। కాలుష్యాన్ని నివారించాలనడంలో ఎవరికి రెండో అభిప్రాయం లేదు। కాలుష్యం ఉండే పరిశ్రమల్ని తప్పకుండా నియంత్రించాలి, నివారించాలి। వాటిని కావాలంటే మీరు గ్రీన్ ఇండస్ట్రీ కింద మార్చండి, ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు। ఎందుకంటే ఇక్కడ కార్మికుడికి లాభం, అటు పరిశ్రమకి లాభం అల్టిమేట్ గా ఇచ్చిన మరి ఉద్దేశం అది। కానీ ప్రభుత్వం ఏమంటున్నది, ఈ 9,300 ఎకరాలు అది కూడా ఎంత ధరకి? ఇక్కడ మార్కెట్ ధర 1,00,00,000 ఉంది గజం, అంటే ఎకరం 50 నుంచి 75 కోట్లు ఉంది। కానీ ప్రభుత్వం ఏమంటుంది, రిజిస్ట్రేషన్ ధర 12,000 ఉంది ఇక్కడ। మీరు 4,000 కడితే చాలు, 4,000 రూపాయలు కడితే చాలు గజం, అంటే ఎకరానికి 1,60,00,000 ఇది అవుతుంది అనుకుంటా। 1,60,00,000 కడితే నీకు 50 కోట్ల నుంచి 75 కోట్ల విలువ చేసే భూమిని ఫ్రీగా ఇస్తా, అది తీసుకొని నువ్వు అపార్ట్మెంట్లు కట్టుకో, నువ్వు బ్రహ్మాండంగా 10 తరాలకు తరిపడా ఆ పారిశ్రామికవేత్త పెద్ద ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యాజమానిగా వారు సంపాదించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు। కానీ వాస్తవం ఏంది, ఇది ప్రజల భూమి, ప్రజల సంపద। ఈ ప్రజల భూమిని ఆనాడు ప్రభుత్వాలు ప్రజల దగ్గర నుండి సేకరించి, రైతాంగం దగ్గర గాని రెవెన్యూ భూములు గాని సేకరించి పరిశ్రమలకు ఇచ్చిన ఉద్దేశం ఉపాధి కల్పన। BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کے دورے جڑمٹلا کے دوران میڈیا کوریج کر رہے انڈیا ٹوڈے کے کیمرہ ہیبرسن دامودر کی موت واقع ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق دامودر کو کوریج کے دوران اچانک دل کا دورہ پڑا اور بغرض علاج انہیں قریب میں واقع راما راجو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، تاہم دوران علاج دامودر دم توڑ گئے۔ دامودر کی موت سے میڈیا حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ دوست احباب نے دامودر کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔
बीआरएस के साबिक वजीर व रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के सनती इलाके का दौरा किया। बीआरएस के मुख्तलिफ लीडर्स जुमेरात को मुख्तलिफ सनती इलाकों का दौरा कर रहे थे। बास लीडर्स का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस की हुकूमत सनती अराजियात को 5 लाख करोड़ रुपए में फरोख्त करके स्कैम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इसे रोकने के लिए कानूनी और अवामी जिद्दोजहद करेंगे। श्रीनिवास यादव की क़यादत में बीआरएस के कारकुनों ने लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के खिलाफ धरना भी दिया। కంపెనీ వాళ్లకు మీరు 30% మీరు ఫ్రీ హోల్డ్ చేసి రెగ్యులరైజ్ చేస్తే ఆయన ఇక్కడ తీసుకొని దీన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని రియల్ ఎస్టేట్కు పోతే దీంట్లో పనిచేసే వర్కర్ల జీవితం ఏం కావాలి? ఇంట్లో పనిచేసేటువంటి మరి కార్మికుల పరిస్థితి ఏంది? ఒక్కసారి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసిందా? మంత్రులు చెప్తున్నారు, స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారు, ఇట్లా కాదు మేము ఇట్లా చేస్తున్నాం. చెప్పండి ప్రజల మధ్యనకు వచ్చి మీరు చేసే మోసం, మీరు చేసే భూదోపిడికి మీరు వివరణ ఇవ్వండి. ఇట్లా అప్పనంగా అమ్మొచ్చా? మీరంటారు ఇండస్ట్రీస్ అంతా హైదరాబాద్ నుంచి బయట పంపేయండి, సంతోషం, మాకు అభ్యంతరం ఏం లేదు. కానీ ఈ భూములు హైదరాబాద్ జంట నగరాలు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రజలకు వాళ్ళ అవసరాల కోసం ఇవ్వండి. ఇప్పటికే ఖబరస్థాన్ మొన్న జూబ్లీ సెలక్షన్ చూసారు, అక్కడ ఖబరస్థానం కావాలని చెప్పి అక్కడ స్థానిక ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులు పోరాటం చేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక జీవో ఇచ్చాడు. ఆ జీవో తీసుకుంటే అది డిఫెన్స్ వాళ్ళే. అంటే ఇట్లా అవసరాలు చాలా ఉన్నాయి ప్రజలకు. ఫస్ట్ ఆ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరు 50% ఇవ్వండి, 50% మీరు అమ్ముకోండి. అది కూడా రూల్స్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం అమ్మండి. మీ ఇష్టానుసారం ప్రజలకు ఉన్నటువంటి భూమిని, ప్రజల ఆస్తిని మీరు దోపిడీ చేస్తామంటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. ఎంతవరకైనా పోరాటం చేస్తాం, ప్రజా పోరాటం చేస్తాం, లీగల్ గా పోరాటం చేస్తాం. అన్ని ఆస్పెక్ట్ లో మేము నిరంతరం పోరాటం చేస్తామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. हैदराबाद सिटी पुलिस ने वाज़ेह किया है कि ट्रैफिक चालानों पर 100% तक डिस्काउंट दिए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर जारी होने वाली मालूमात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। अफवाहों में 13 दिसंबर को चालान रियायत देने का दावा किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने वजाहत करते हुए कहा है कि अब तक इस सिलसिले में कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। आवाम से अपील की गई है कि गैर मुस्तनिद और गैर मुसद्दिक़ा मालूमात पर यकीन न करें। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर आंजहानी के रोशैया को उनकी बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खिराज पेश किया गया। गांधी भवन में रोशैया की तस्वीर पर सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड़, नायब सदर कुमार और दूसरों ने फूल डाले। बानी कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत और इकबाल एकेडमी सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मरहूम के फर्जन सैयद अयूब हुसैनी को बिला मुकाबला तामीर मिल्लत का सदर मुंतखब किया गया है। मोतमद अमूमी तामीर मिल्लत उमर अहमद शफीक की इत्तला के मुताबिक मरकज़ी मजलिस शोरा के इजलास में बिला मुकाबला सैयद अयूब हुसैनी को सदर मुंतखब किया गया है। महकमे कस्टम्स के आला ओहदे से हाल ही में सैयद अयूब हुसैनी सबदोश हुए हैं और उन्होंने अब मिल्लत की खिदमत का बेड़ा उठाया है। तामीर मिल्लत के तमाम ज़िम्मेदारों ने सैयद अयूब हुसैनी से कई तवक्कुआत का इजहार किया है। मुझ पर आयत होगी, मैं इनको पूरा करूंगा और इन बातों को जिन्हें राज करार दिया जाए या जिनकी नौयत राज की ही हो किसी पर जाहिर न करूंगा। अल्लाह मेरी मदद करे, आमीन सुमा आमीन। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली अपने हल्क़े-जात में तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील करवाने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं। साथ ही अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए भी इक़दामात जारी हैं।
मजलिसी अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर से जुड़ी खबरों पर एक तफसीली नज़र डालते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत सिलेंडर्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीज़न में 50 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में पकवान गैस सिलेंडर्स और चूल्हे तकसीम किए। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। हाजी मस्तान आफरीन बेगम यास्मीन फातिमा थोड़ा और बस है। अफशा जमील सैयद रहमत बेगम अहमदी बेगम इंडियन अजमत खान मजलिस के मोतमद उमूमी और साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की सेहतियाबी के लिए दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन में दुआ की गई। शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने साबिक़ रुकन असम्बली की सेहतियाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, तेलंगाना अक़लियती कॉरपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्ला कोतवाल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन पर चादर गुल चढ़ाई गई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाद नमाज ज़ोहर दरगाह यूसुफ़ैन में बज़्म तारीख़ की जानिब से सैयद अहमद पाशा खादरी ज़मीन कुल्ला साबिक़ एमएलए मुतवद्दे उमूमी कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सेहतियाबी के लिए यहाँ पर दुआ मुनक़्क़िद की गई। तो दुआ में मौलाना खलील अहमद साहब, मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफ़ी साहब, सैफ पाशा खादरी साहब, तमाम लोगों ने यहाँ पर दुआ में शामिल हुए। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि आज इस तरह दुआएँ जो हो रही हैं उस शख्स के लिए हो रही है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी कौम की खिदमत के लिए लगा दिया। पूरी ज़िंदगी में इन्होंने फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा का साथ दिया, सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा का साथ दिया, और आज नखीब मिल्लत और हबीब मिल्लत के साथ जमात के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। हैदराबाद की तमाम आवाम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग अपने नमाज़ों में उनके लिए दुआ करिए। जब कभी आप नमाज़ पढ़ते हैं हर वक्त अपनी दुआओं में इनकी सेहत के लिए आप लोग दुआ करिए। अल्लाह ताला इनको सेहत बख्शे और फिर से हमारे दरमियान में आकर हमारी खिदमत करें।
नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन के हदूद में छोटा पुल के करीब जुमेरात की रात एक नौजवान पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। जुनैद पर नामालूम हमलावरों ने खंजर से हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया था, जिसके बाद जुनैद को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान जुनैद की मौत हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक 2 अफराद ने कातलाना हमला किया है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तौसीक़ होनी बाकी है। इत्तला मिलते ही DCP सौज़ोन ने मुकाम वाक़े का तफसीली मुआयना किया और अपने मातहतीन को ज़रूरी हिदायतें भी जारी की। रेन बाज़ार डिवीज़न छोटे पुल पे शाम में 10 बजे एक हादसा पेश आया। बड़ा ही अफसोसनाक हादसा है। एक नौजवान लड़का जुनैद बिन मोहम्मद, उसको कातिलाना हमला करके उसको कत्ल कर दिया गया। बड़े ही बेदर्दी से मारा गया। जैसे ही इत्तला मुझे मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने खास कहा कि इमीडिएट जाइए। तो पुलिस पहुंचने से पहले हम ये जो बच्चे इंजर्ड हुआ था उसको यशोदा मलकपेट लेके आते, मैं और रेन बाज़ार के कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब और दीगर लोग हम फौरी पहुंचे तो पता चला कि ये बड़े मोहम्मद भाई का लड़का है जुनैद बिन मोहम्मद। उसको मारने वाले आपस में पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या है नहीं मालूम, मगर बहुत ही बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया गया। इमीडिएट यशोदा से बॉडी उस्मानिया मॉर्चरी को शिफ्ट किया है। इंशाल्लाह सुबह पोस्टमार्टम करके बॉडी हवाले करेंगे। मैं ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ, कोई भी रहने दीजिए, जो भी आदमी जुर्म करा है, कत्ल करा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, केस अच्छे से होना चाहिए, और ताकि आइंदा ये जो कुछ भी शहर हैदराबाद में हो रहा है उसकी रोकथाम हो सके। इसके पीछे क्या है कि फैमिली के लोग इंशाल्लाह बताएंगे। मैं पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन करिए, जो कातिल है उसको अरेस्ट करिए और सज़ा मुकम्मल दिलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। शादनगर म्यूनसिपलिटी हदूद में वाक़ ऑफिसर्स कॉलोनी के एक मकान में खुफल शिकनी के ज़रिए सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। सारिकीन ने इस वारदात के दौरान 15 तोले तिलाए ज़ेवर और 1,20,000 रुपये नगद रकम उड़ा ली। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुतासरा मकान का मुआयना किया और क्ल्यूज़ इकट्ठा करते हुए इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया।
चंद्रनगुट्टा पुलिस की क्राइम टीम ने गुम और लापता हुए मोबाइल फोन्स का पता चलाते हुए उसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया है। तकरीबन 24 मोबाइल फोन्स का पता चलाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ए सुधाकर और इंस्पेक्टर पुलिस आर गोपी की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। मोबाइल पाने वालों ने चंद्रनगुट्टा पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी की टीमों ने जुमेरात को रंगारेड्डी जिले लैंड रिकॉर्ड्स महकमे के एडी श्रीनिवास के दफ्तर और मकानात पर धावे किए। तफसीलात के मुताबिक कलेक्टर ऑफिस के अलावा भूजाल में वाक़ माई होम में उनकी क़यामगाह की भी तलाशी ली गई। रंगारेड्डी और उसके आसपास के इलाकों में तकरीबन 6 मुकामात पर धावे किए गए। महबूब नगर जिले में एक राइस मिल की मिल्कियत का पता चला है, जबकि बेनामी के अलावा आमदनी से ज़्यादा असासों का इंकशाफ भी हुआ है। जुमेरात की दोपहर तक भी मुख्तलिफ मुकामात पर धावों का सिलसिला जारी था। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज़हनी तौर पर माजूर कम उम्र लड़की से जिनसी ज़्यादती के मुजरिम को उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इस्तिखाज़े के मुताबिक मोहम्मद यासीन उम्र 55 साल जो बालापुर मंडल के इराकुंटा इलाके का रहने वाला है और पेशे से दर्जी बताया गया है, उसने 11 जुलाई 2023 को घर में अकेली मौजूद 15 साला ज़हनी माजूर लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था। मुतासरा की बड़ी बहन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और रिमांड पर भेज दिया। बाददां चार्जशीट अदालत में पेश की गई। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट जज M.K. पद्मावती ने जुर्म साबित होने पर यह फैसला सुनाया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में इंडिगो एयरलाइंस की कारकर्दगी ठप, 1200 से ज़ायद परवाजें मनसूख, मुसाफरीन की बरहमी, एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी। DJCA ने एयरलाइन इंतज़ामिया को किया तलब। अयोध्या का तनाज़ा अराज़ी का था, नाम का नहीं। मुल्क में राम के कई मनादिर हैं, खानगी अराज़ी पर किसी नाम से भी मस्जिद की तामीर का हक़ है। मजलिस के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान का रद्द अमल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। तेलंगाना हुकूमत की लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के खिलाफ BRS अरकान का सनती इलाकों का दौरा। बानी कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत और इक़बाल एकेडमी सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मरहूम के फर्जंद सैयद अयूब हुसैनी बिला मुकाबला तामीर मिल्लत के सदर मुंतखब, अरकान ने दी मुबारकबाद। रैन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में नौजवान का मोहल्लिक हथियारों से कत्ल, इलाके में सनसनी। जफर पहलवान के 2 फर्जंदान मुबैना तौर पर मुलव्विस।
रंगारेड्डी ज़िले के लैंड रिकॉर्ड्स महकमे के एडी श्रीनिवास के दफ्तर और मकानात पर एसीबी के धावे, आमदनी से कहीं ज़्यादा असासों का हुआ इंकशाफ। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।